वीडियो पहले पीर चस्कानी दी सुनो ते बाद च अमर हंजीर दी भी सुन लियो। असी आज के रसूल अल्हम्दुलिल्लाह आवे फेल बीवी के माशूका हैं बहुत सारे लोग। तेरी बीवी माशूका होगी किसी की, जाहिल। चस्कानी ए वीडियो चलाने तो पहले तुहानू मैं दस छड़ा कि उत्थे मुर्तदा वान भी बैठा था, कैसर मलक भी बैठा था, अमर नज़ीर भी बैठा था, अमर हंजीर भी बैठा था। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਵੀ ਬੈਠਾ था। ਤੇ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟਅਪ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਮਰ ਹੰਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ, ਅਦਰ ਸੁਣੀਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦੇ ਜੇ ਪਏ। साहब कोई नहीं तेरे को अल्फाज है कि हुन तू मेनू यही आशिक तूने देखना है अपने बीवी के आशिक ढूंढ। तेरी बेबी नहीं है वो ढूंढ। बीवी के अपने बीवी के बारे में देख। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करोगे। गाली नहीं हैगी, गाली नहीं हैगी बीवी। तू जब नबी की गुस्ताखी करेगा, यही बात तू नबी दी गुस्ताख करदा सी तो गुस्ताख करदा सी तो फन दी शान। खलो जा मैं तन्नू हुन खलो जा एक बार मैं सिर्फ दसना सी, एक मिनट की रच करने बैठा है तुम ये सब। एक मिनट मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे अमर भाई को बात, मुझे एक मिनट बात करने दे। और अगर ये लफ्ज़ आशिक जेड़े जाहिल कहेगा नबी का आशिक नबी की जात पे, नबी का आशिक है। तेरी बीवी का आशिक कौन है वो भी बता हमें। अगर ये अल्फाज गलत नहीं है तो तेरे बीवी का आशिक क्यों नहीं है? दुनिया सब तेरी बीवी के आशिक है फिर, अगर ये अच्छे अल्फाज हैं। खबीसो, शर्म नहीं आता है। वो खुद ही चला गया, उतारा तो किसी ने नहीं है, बात हुई नहीं है, कंप्लीट ही नहीं हो सकी बात। चलो अगर थल्ले बह के ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਵਾਬ ਚ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਗੁਸਤਾਖ। ਕਿਹੜੇ ਵਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ? ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਾ ਨਹੀਂ ਟੰਗਣ ਲਗਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਟੰਗਣ ਲਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਬੀਆਂ ਪੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੈਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੁੱਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਫੈਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਤਰ ਲੈ ਸ਼ਲਵਾਰ ਤੇ ਮੂਤਰ ਲੈ ਸ਼ਲਵਾਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚਾਹੋ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲੈ ਸਲਾਤ ਲੈ ਸਲਾਮ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛਪੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੂਤਰ ਲੈ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਲੈ ਸਲਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੋਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਓਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਸਲਾਤ ਲੈ ਸਲਾਮ। ਓ ਵੱਡਿਓ ਆ ਗਏ ਹੋ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ। ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਦਲਿਓ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਆਇਆ ਬੱਚੀ ਲੜ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੀਓ ਜ਼ਰਾ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਗੈਰਤ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜੇ। ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਸੁਵਰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ। ਅਗਰ ਐਡਾ ਗੈਰਤ ਇਮਾਨੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਲਾਮ ਆਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੂਤਰ ਲੈ ਸ਼ਲਵਾਰ ਰੱਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਬੇਗਾ वही देखे हैं वही ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਮੂਤਰ ਲੈ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਿਖੋ। आमिर रजीक ਆ ਜਿੱਥੇ साहब ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਲੇਸਲਾ ਤੇ ਲੇਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੂਤਰ ਲੈ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਿਖੋ। टिप टिप करो रिपोर्ट की जा रही है, टिप टिप करो। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੂਤਰ ਲੈ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਿਖਾਓ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੇ और लानतिया ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਝੂਲੇ ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ने ये ਉੱਥੋਂ ਝੂਲੇ ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। नबी चला गया था, ये नबी का आशिक कहता है कि मैं नबी का आशिक हूँ, तेरे बीवी का आशिक। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਬੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦਾ ਪੀਚਸਕਾਨੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਵੇ ਪੀਚਸਕਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਜ਼ਾਤੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਗੁਸਤਾਖੋ। बता ਇਹ ਇਦੀ ਦੇ ਝੂਲੇ ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। बताओ। नहीं नहीं पीर साहब किसी की बीवी का पीर साहब आप भी जाते हैं ना करें किसी की बीवी का नाम तो ना अमर पे करिए ना। मैं उसको समझा ਮੈਨੂੰ रहा ਗੱਲ हूँ। ਕਰਨ ਦੋ नहीं पीर साहब ऐसा गलत आप भी गलत बात ना करें। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋਗੇ कि वो नबी का आशिक है तो अगर ये बुरा लफ्ज़ है तो उसके पप्पू ने भी किया है, आप ऐसा ना करे। पप्पू ने भी थले लाता ने बीवी का आशिक क्यों नहीं हो सकता? बताओ, अगर बुरा लफ्ज नहीं। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। इतना बड़ा जो है ओए। हदीस इंसान ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ लानत है तेरी जात पे। नबी का आशिक ਇਹ ਹੁਣੇ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਜੇ। ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਨਬੀ ਦਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮੂਤਰ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਸਾਂ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। जहन्नम के कुत्ते। आमिर भाई से इंसाफ की गल करो। अगर वो गाली बात से गाली दी पीर साहब दे रहे क्या हैं होगी तेरी बेबी क्या होगी बता। ਪੱਪੂ ਜ਼ਬਾਨ सिर्फ ਬੰਦ तू ही आशिक है। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਪੂ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ये दुनिया का बदतरीन गलीज तरीन अल्फाज ये खबीस इस्तेमाल करते हैं नबी के लिए, गलीज तरीन अल्फाज जो इनको बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये अल्फाज ठीक हैं तो बताओ, जब मैं कहता हूँ तेरे माँ का आशिक है वो क्या नाम है अभी जो आया था आमिर अवान, तू क्यों घबराता है? तू क्यों कहता है कि ये गलत है? पता पड़ा तू लानती है, ये गलत अल्फाज नबी के लिए इस्तेमाल कर रहा है जाहिल के बच्चे। नबी का आशिक बोलेगा मैं तेरे माँ के आशिक दिखा दूंगा। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ आशिक का मतलब होता है प्यार करने वाला। हम सब ਚੱਲ नबी ਚੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ के हम ਪੱਪੂ आशिक ਉਹ रसूल ਗੱਲ हैं। ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਣ ਦੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਣ ਦੇ। तू भी यही बकवास कर रहा है पप्पू पप्पू। बता ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ की ਕਰ। बात की तो ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ पहला ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਤਬਲੀਗ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ। ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਕਰੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇੱਥੇ ਮੂਤਰ ਲੈ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਬੇਗੈਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਤਰ ਲੈ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ ਏ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਜਾਲੀ ਗੈਰਤ ਮੰਨਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਐਲੋ ਫੀਸ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਿਟ ਕਰੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਸਲਾਮ ਲਿਖੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੂਤਰ ਲੈ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲ ਬੰਦਾ ਟੋਰਿਓ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲ ਬੰਦਾ ਟੋਰਿਓ ਤੇ ਆ ਲਿਖਵਾਇਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਛੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਕੜਾਮ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੜੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਉਧਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾਇਓ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਤਵਾ ਦਵਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ फतवा नहीं दवाना। गोल्डन शरीफ दरबार मौजूद है, उत्थे बैठ के किताबा खोलो, सैफ चिश्तियाई खोलो, मेरे मुनीर खोलो, शमसुल हुदाया खोलो, तो ना आखो इतने साहब लिखे क्यों लिखे, पहले इसे मिटाओ। फिर ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਲਿਖੀ, ਸੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਾਈ ਵਾਲਾ ਗੋਲਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜੇ ਤੇਰੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਈ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ।
ਤੁਸੀਂ ਹਲਵਾ ਖਾਣ ਕਿਤੇ ਹੋ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਸੀ ਤੂੰ ਵੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਇਹ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕਟਵਾਓ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਆ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈ ਗੂੰ ਖਾਣ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੋ ਟਕੇ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪੀ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਲੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੌਜੂ ਹੈ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੀ ਮੌਜੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈयद ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਿਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬਰੇਲਵੀ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਓ ਛੋੜ ਦਿਓ ਨਾ जिसले उत्थे जाओ तो बड़े बड़े बोर्डा ते उत्थे तारीख लिखी है कादियान ने बारे पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिले ये बात हुई है ते उस वेले ये सारी चीज़ां इस वेले भी जुमे जाओ ते अक्सर मौजू ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨੀਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ हाँ सैफे चिश्ती है मेरे मनीर है मेरे को पर्चा मैं थोड़ी देर तक होने ते मैं ला देना ते हुण जाहिर है जिन्हां लोकां ने ना लैणे हो जिन्हां मोहब्बत करने हो कम से कम उन्हां दी चाल ते चलो ना कोई अकल नहीं है मोहतरम भाई जितने भी हमारे भाई यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं ये लोग गुफ्तगू के काबिल नहीं ये जाहिल हैं जाहिल इनको इज्जत दे रहे हैं आप क्यों इज्जत दोगे ये दिन रात गालियां हमें दें हम कोई इमरान कालू आया ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਲੇ इमरान कालू ਸੀ ये शाहिद भाई अच्छा। ये गुफ्तगू कितनी जी, को लंबी है ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ 58 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜਿੱਤੇ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ गल तो सुनो एक मिनट है मतलब है ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸੇ ਮਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੂਤਰ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਲਕ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਤਰ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਾਣੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੀਸਰਾ ਵੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ मुफ्ती साहब तीसरा सवाल ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵਾਇਸ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਓਕੇ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇਖੋ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ
ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਲਓ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ। ਇਹ ਤੇ ਪੀਰ ਚਸਕਾਨੀ ਨੇ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ। तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है। आ गया मौलवी ज़ियार सुल आके का एनर्जी सारी वेस्ट कर छड़ी इत्थे आ जाओ। ये आके ते गालां कड्ढ तुसां चौमुखी लड़न लग पैणे हो तो बस ये ते मावां भैणां दियां गालां कड्ढ के अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान आमर भाई, अर्ज ये है कि ये पीर आसकानी भाई जो डंडी मार रहे हैं, आप इससे मुतफिक हैं? कौन सी बात कर रहे हैं? अभी ये आशिक के लफ्ज पे भी इन्होंने क्या क्या बातें की हैं। ठीक है, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता जो गालियां देते हैं, मैं आपको पता है मैं ऑलरेडी उनके खिलाफ हूँ, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन पीर आसकानी भाई ने भी जितनी डंडियां मारी हैं, अभी आशिक के लफ्ज पे ये क्या कहना चाह रहे हैं? आप इनके साथ बैठे हुए हैं। नहीं आशिक लफ्ज पर पहले भी उलमाए अहले हदीस से आज से 20 साल पुरानी 30 साल पहले उलमा के बयान। ये हमारा ये मनज नहीं है ना कि हम इस सतह पर जाकर ये चीजें डिस्कस करें, हमारा तो मनज नहीं है ये। हाँ, हमारे पास मैं वही कह रहा हूँ कि इस पर बरेलवी उलमा इस पर आप लोगों के बारे में इख्तिलाफ कहते हैं, हम भी शुरू हो जाए क्या? हम ये हाँ अल्फाज के चुनाव में इख्तलाफात हैं। ये लफ्ज जो हैं, ये आशिक का लफ्ज उलमाए अहले हदीस सख्त मजम्मत इसकी करते रहे और 30 साल का मैं पुराना उलमा का बयान पेश कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ। नहीं मुफ्ती साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ तो ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। अच्छा, गुजारिश ये है कि अभी रिकॉर्डिंग भी चल रही है और पिछले भी सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं और हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। शाहिद भाई की भी ब्राड्स और ये पीर असकानी साहब की या मतलब आमिर नज़ीर भाई की जो ब्राड्स हैं वो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हैं। दोनों तरफ जो गुफ्तगू है और जो ये एक गलतफहमी या जो भी इसको कह लें, जो एक नज़ा है, जो एक लड़ाई है या जो भी जो उलझन है, वो दोनों तरफा हक़ाइक़ जो हैं वो हमने अपलोड कर दिए हुए हैं। तो वहाँ पे आप साहब का गुफ्तगू देख सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे सारे ही मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हैं, दोस्त हैं, हमारे प्यारे हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। कुछ दोस्त शाहिद भाई के साथ हैं और कुछ दोस्त आमिर नज़ीर साहब के साथ हैं। तो ये मैं सारी आज गुफ्तगू अपने तौर पे इसको क्लोज़ करता हूँ। हमारी गुफ्तगू सुनने के बाद किसी की समझ में आए तो फिर भी ठीक है, ना समझ में आए फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने हमें बोलने का मौका दिया है और हमारी राय लेना चाहते हैं तो ठीक है, हम अपनी राय देंगे। मैं अपने तौर पे अपनी बात करूंगा। मैं दोनों में से दोनों के तरफ हूँ और किसी की तरफ नहीं हूँ। मैं गैर जानबदार आदमी हूँ। अगर मुफ्ती साहब जो आपसे सवाल पूछे ना प्लीज उसका जवाब दीजिएगा। जो मैंने मुद्दा उठाया है उस मुद्दे पे बात कीजिएगा प्लीज, अपनी राय नहीं या इस्लाम की बात हो रही है। नहीं, अगर तो आपने डिक्टेट करना है शाहिद भाई कि भाई एक आलिम ये दीन, डिक्टेटिंग नहीं है मुफ्ती साहब, ये डिक्टेट नहीं है। इस्लाम पे कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, ये मुझे इतना इल्म है मुझे कि इस्लाम के ऊपर कोई बंदा किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। जब आप कलमा पढ़ लेते हैं ना तो एक दायरे में आ जाते हैं, वो होता है दायरा इस्लाम। जो दायरा इस्लाम से हट के बात होगी ना वो मुनाफकत होगी। जी शाहिद भाई, अगर तो आप चाहते हैं कि एक आलिम दीन आपके सामने मौजूद है, मुफ्ती मौजूद है, उसको आप अपना लुकमा देना चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं वो चीज नहीं मुफ्ती साहब नौजुबिल्ला, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। आपने जो बात की है ना कि आप दोनों के साथ हैं और मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा, तो इस पे आप अपना मौक़िफ़ देंगे, इस्लाम की बात नहीं करेंगे, फिर मुझे ये समझ आई है। जी हाँ बिल्कुल।
तो गुजारिश ये है कि अगर तो आपने कोई मुझे अपना कोई लुकमा मुझे लिखवा दे, मैं वो बोल दूंगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, वो भी ठीक है, वो भी चल आप जाएगा। आलम दीन है, आप आलम दीन है, आप मुझे फोर्स करें कि मैं आपको अपना अपना लुकमा दूं और बोले, नौजुबिल्ला, मैंने ऐसी कोई नहीं बोला। मैंने बोला जो इस्लाम की रूह से जो आपने वीडियो सुनी, जिस तरह से ये गुफ्तगू हो रही है, सिर्फ इस्लाम की रूह से बताएं, क्योंकि शायद मेरा भाई अकीदा पहले जो तो है, ये अगर अगर बात करने अगर का मेरा अगर पहले मेरा ये अकीदा बात सुनना है करने ना, का शायद भाई कोई बात करने का ये अंदाज नहीं है कि आपने मुझे बकायदा मौका दिया और आपने कहा भी मैं अब माइक म्यूट करता हूँ, आप बोल लें। तो मैं ये समझ रहा हूँ, और हर मुनसिफ मजाज इंसान हमारी दोनों की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा सकता है कि आप मुझे डिक्टेट कर रहे हैं और ऐसे बांध के मुझे बैठा के यहाँ पे अपनी चीजें मेरे मुंह से नहीं नहीं बुलवाना। मुफ्ती साहब ऐसी बात नहीं है, ठीक है, शायद इनको बात करने दे, बीच में कोई ठीक है ना, और ना और बोले, मुफ्ती भी है, बीच में उनसे कोई भी और राय नहीं ले बोले, लेना भाईजान, बीच में और मुफ्ती भी शायद भाई ये दूसरे जो लोग आते हैं ना, वो जलती के ऊपर तेल का काम करते हैं कि और भड़काते हैं। तो हम तो भाई हैं आपस में और हम बात कर सकते हैं, और मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरी करते हैं, तो हम कर सकते हैं आपस में। तो ये है कि अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं बोलता हूँ, फिर अपनी राय मैं करूँगा बयान। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी मर्जी के जवाब होना चाहिए, तो वो वैसे मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सौदा मेरे पास नहीं है ही नहीं किसी प्लेटफॉर्म पे। हम मुफ्ती बशर शाह आजिज एक तो आलम दीन है, दूसरा मैं हमेशा से आज़ाद रहा हूँ, आज़ाद, मैं किसी का कोई पाबंद नहीं, किसी का कोई डिक्टेशन लेता ही नहीं, कभी भी नहीं, मैं आज़ाद आदमी हूँ। हाँ, अगर कोई डिक्टेट मुझे करना चाहता है तो वो एलानिया तौर पे बताएगा कि भाई ये वाला चीज़ तुम बयान करो, वो फिर मेरी मर्जी, या मैं बयान करूँ या ना करूँ। तो ये मेरा मजाज है, ये सारी दुनिया के सामने, किसी को पसंद आए ना आए उसकी मर्जी। अच्छा, मैं कोई थोड़ी सी तमहीदी तौर पे कुछ अर्ज कर दूं। पहली तो बात यह है कि आमिर नज़ीर साहब और इनकी जो पूरी टीम है वो अहले हदीस मकतबे फ़िक्र, जिनको आमतौर पे वहाबी कहते हैं, उनसे ताल्लुक़ रखती हैं, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ख़त्म नबूवत के बहुत बड़े मुजाहिद हैं, और आप लोगों की सोच से ज़्यादा ज़ाती तौर पे मैं उसका शाहिद हूँ। हमें तकरीबन सोशल मीडिया के ऊपर तकरीबन 25 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। टिक टाक जब पाकिस्तान में भी नया नया इंटर हुआ था, तो उस वक़्त के
जो अभी तक वो टिके हुए हैं, नहीं तो बड़े दोस्त आए आके चले गए, उनका पता भी कोई नहीं। तो ये चंद हम रह गए हैं, चंद दोस्त रह गए हैं, ये 4 5 6 हैं जो पुराने चलते आ रहे हैं। ये तो कोई थोड़ी सी तारीख बता रहा हूँ। इस पूरी तारीख के अंदर कादियानी अवानों के अंदर जलजला बपा हो गया है। ये समझ लें ये ही वो टीम है 5 6 की जिनका बकायदा तौर पे मिर्जा मसरूर ने ऐलान किया। उसके अंदर ऐलान के अंदर ज़िया रसूल और मैं हम दो का ऐलान किया कि इनके चैनल से दूर रहना है, इनकी टीम से दूर रहना है, इनके करीब नहीं आना। बाकायदा तौर पे ऑफिशियली मिर्ज़ा मसूर की तरफ से ऐलान हुआ था। या आज से 6-7 साल पहले की बात है। वो पूरी कार्रवाई हमारे यूट्यूब चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर साहब का वीडियोस देखेंगे, आपको मिल जाएगी। गुजारा ये है कि ये मसलकी मामले के तहत इख्तलाफ हमारा एक अरसे कर रहा है, आमिर नज़ीर साहब से, नईम अमान साहब से, ये अस्कानी साहब तो अभी के शामिल हुए हैं। अस्कानी साहब का हमारा तारुफ हुआ था, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना था, प्योर डिस्कशन ग्रुप, वो बनाया था मीर फैसल नाम के एक शख्स ने। मीर फैसल जो है वो एजेंसियों का बंदा है और उसके आज तक कोई मजहब का पता नहीं चल सका कि वो क्या है। वो कभी हिंदू बन जाता है, कभी सिख बन जाता, कभी मुल्हिद बन जाता है, कभी वो सुन्नी बन जाता है, कभी वाबी बन जाता है, कभी शिया बन जाता है। मतलब ये कि वो चौमुखी है। वो आज तक उसका कोई समझ ही नहीं आई किसी को भी कि बंदा कौन है। तो वो एजेंसियों का एक ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर जिसको इस्लाम मुखालफ एजेंसियां चला रही हैं, तो प्योर डिस्कशन ग्रुप के नाम से। तो वहाँ पर एथीस्ट, दैरिये, कादियानी, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी सब शामिल हैं, बहाई भी लोग उसमें शामिल हैं। तो उसने कोई ग्रुप इस किस्म का मैनेज किया हुआ है कि जो इन मज़ाहब के बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको उसने शामिल किया है। वो छोटे बंदों को ऐड नहीं करता, बड़े बड़े लोगों को जो ऊपर की सतह के होते हैं हर मजहब के, उनको बीच में शामिल करके उनकी डिबेट करवाता है और खुद साइड पे रहता है। तो पहली दफ़ा ये अस्कानी साहब का मेरे साथ टाकरा हुआ था उसी ग्रुप के अंदर। मुल्हिदीन के साथ मेरी डिबेट हो रही थी, तो ये इन्होंने मुल्हिदीन का साथ दिया था और मेरा यानी मुखालफत की थी। इस चीज़ के जो शाहिद हैं हमारे कई दोस्त हैं, जिनके अंदर उस्मान रिजवी है, सफ़ीर किंग है और कई दोस्त, क्यानी साहब भी थे, क्यानी, ज़मीर क्यानी भी, हाँ जी। तो कई दोस्त इस चीज़ के शाहिद हैं। तो बहरहाल अस्कानी साहब का पहला तारुफ ही जो था वो समझ लें कि मेरे साथ एक टसलबाजी पर हुआ है, यानी अभी बिल्कुल तारुफ ही हुआ है और वो भी मुखालफत के अंदर। और उधर मैंने अस्कानी साहब की काफ़ी अच्छी खासी धुलाई कर दी थी, वो अस्कानी साहब को पता है। अच्छा, ये थोड़ी सी तारीख मैं आपको बता रहा हूँ। फिर बाद में ये हुआ कि अस्कानी साहब की अटैचमेंट हो गई आमिर नज़ीर साहब के साथ। अंदर के हकायक कोई पता चले कि अस्कानी साहब भी वाबी हैं, अहले हदीस हैं, और चूंकि आमिर नज़ीर साहब तो हैं ही वाबी, तो वो फिर कोई होता है मसलक का या मकतबे फ़िक्र का एक होता है, मोहब्बत होती है, तो वो फिर उनकी अटैचमेंट उनके साथ हो गई। नईम अमान साहब भी अहले हदीस हैं, लेकिन ज़बरदस्त मुजाहिद ख़त्म नबूवत, आमिर नज़ीर ज़बरदस्त मुजाहिद ख़त्म नबूवत। लेकिन अस्कानी साहब जो हैं इनको मुजाहिद ख़त्म नबूवत कह सकते हैं या नहीं कह सकते, वो आपकी अपनी खुशी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कादियानियत के ऊपर उनका इतना मुताला नहीं है। असल होता है मुताला देखा जा सकता है कि भाई ये बंदा डिबेट की कितनी सलाहियत रखता है। फ़कत बराडे करना या मतलब लाइवें करना, पूरी रात बैठे रहना, गाली गलोच करना, वो तो सारे ही कर रहे हैं, वो तो सारे करे। इस तरीके से कोई मुजाहिद ख़त्म नबूवत नहीं बनता
इस तरीके से कोई नहीं बनता। डिबेट करना एक सलाहियत है, उसके अंदर बड़ा वसी इल्म की ज़रूरत होती है, फिर कहीं जाके एक मुजाहिद ख़त्म नबूवत बनता है और उसको आप कह सकते हैं ये मुजाहिद ख़त्म नबूवत है और इसके अंदर वाकई सलाहियत है डिबेट करने की। तो आमिर नज़ीर साहब वाकई मुजाहिद ख़त्म नबूवत हैं और डिबेट करने की सलाहियत रखते हैं। ज़िया रसूल है, नईम अमान है, ये लोग हैं। अच्छा ये भी हो गया। अच्छा अब ये जो 3 मौज़ूआत थे इनकी तरफ हम आते हैं जो जिनके ऊपर नज़ा बना हुआ है और ये मामला चल रहे हैं। लफ्ज़ इश्क जो है ये अरबी का लफ्ज़ है और इसका मादा असली आइन, शीन और काफ है। ये मादा असली है आशिकुन, इसमें फ़ाइल है फ़ाइलुन के वज़न के ऊपर, आशिकुन। तो ये अरबी का लफ्ज़ है और इसका इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा फ़ारसी के अंदर हो रहा है। अगरचे है ये अरबी लफ्ज़ लेकिन इस्तेमाल ज़्यादातर ये हो रहा है फ़ारसी के अंदर। फ़ारसी के ज़्यादातर अशार के अंदर आपको आशिक और इश्क का लफ्ज़ मिलेगा। चूँकि उर्दू जो है वो एक समझ लें कि मुख्तलिफ ज़ुबानों का मजमू है, तो उसके अंदर अरबी के अल्फाज भी शामिल हैं, फ़ारसी के भी, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, और मुख्तलिफ ज़ुबानें उसके अंदर समा जाती हैं। तो ये आशिक का लफ्ज़ फिर उर्दू के अंदर भी बोला जाने लगा और पंजाबी के अंदर भी बोला जाने लगा। इसका मतलब होता है फरेफ्ता होना, अपना आप किसी के सपुर्द कर देना, शिदा होना, फना हो जाना किसी की मोहब्बत के अंदर। तो ये मुख्तलिफ मानों के अंदर ये इस्तेमाल ये लफ्ज़ होता है, वो होता है। अब जैसा कि आसकानी साहब कह रहे थे और आमिर नज़ीर साहब भी कह रहे थे कि अहले हदीस लोग और उनके उलमा बहुत अरसे से इस आशिक का लफ्ज़ के ऊपर इतराज़ात करते आ रहे हैं। तो ठीक है, मानते हैं, ऐसे ही है, क्योंकि मकातबे फ़िक्र अलग अलग है, सोच अलग अलग है, दोनों तरफ उलमा की राय अलग अलग है, तो मानी जा सकती है। कोई इसमें तो कोई लड़ाई वाली झगड़े वाली बात ही कोई नहीं है। वो लोग नहीं इस लफ्ज़ को मानते और इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के लिए ये लफ्ज़ इश्क का वो समझते कि ये गुनाह है, हराम है और नहीं बोलना चाहिए। हमारे नज़दीक ये जायज़ है। तो ये थोड़ा सा समझ लें कि मकातबे फ़िक्र का इल्मी तौर पे इसमें इख्तलाफ है। तो ये मसला तो यहाँ पे हल हो गया। ठीक है जी। अगली बात ये है कि अलैहिस्सलाम को ना ही तो वो आमिर नज़ीर साहब और ना ही हम लोग कोई भी मिर्ज़े कादियानी के लिए जायज़ नहीं कहते। अभी जाके उनसे पूछना क्या आप समझते हैं, और इनकार करते हैं। यार कोई भी मुजाहिद ख़त्म हो, मुजाहिद ख़त्म नबूवत और मिर्ज़े कादियानी के लिए लफ्ज़ अलैहिस्सलाम को जायज़ समझे, है हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, कभी भी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कादियानी आके बोले, कादियानी आके वो मिर्ज़े कादियानी के लिए लफ्ज़ अलैहिस्सलाम बोलते हैं, कादियानी आके कोई गालियां निकालता है हमारे मुकद्दसात को, कादियानी आके तौहीन करता है, वो तो कादियानी कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कर रहे। कल ही एक बराड़ के ऊपर बैठा हुआ था तो एकदम एक कादियानी आया ऊपर, आते ही उसने हजूर गोश्त पाक को गाली दी। क्या इसका मकसद ये है, ये कहा जाएगा कि मुफ्ती बशर शाह तू बिठा के गालियां निकलवाता है? बल्कि बाद में एक वो हमारे सुफियान लोन भाई हैं, वो भी आए, वो भी पुराने हमारे साथी हैं, तो उन्होंने आके कोई इस तरह की बात की, तो मैंने उनसे पूछा भी कि क्या आपका मकसद ये है कि मैंने ये काम करवाया है? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं माजरत से इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक चीज और ऐड यार एक मिनट आमर एक मिनट चुप कर, एक मिनट। मुफ्ती साहब गल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ
ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਕਰਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੁਰਤਕਬ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ आवाज नहीं आ रही ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ? ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ अब मेरी शाह जी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਤੰਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਭ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਮੂਤਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਗਾਏ ਬਗਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ XYZ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਵੋ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਰਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਰਿੰਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਲਲ ਹੈਗਾ। ਜਜ਼ਾਕੁਮੁल्लाह खैर। एक चीज और ऐड करियो, पेंसिल ले लियो, लिख लो कुतुब गौस अब्दाल कलंदर तोवा नोज बिल्ला टट्टे शाह, इन दोनों ने किया, ये भी चीज लिख लियो, ऐड करियो। गौस कुतुब। अच्छा जी मैं लिख लिया थोड़ा हुक्म मान लिया जनाब आमिर भाई। अच्छा बात ये है कि अब सवाल यहाँ पर ये है कि भाई हर एक का मजाज अलग है, तरीकाकार अलग है, उसका हैंडल करने का मामला अलग है। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। जब कोई कादियानी मेरे सामने कहता है तो इस चीज़ के कई लोग गवाही दे सकते हैं कि मैं तो आगे कादियानी की बजा के रख देता हूँ। ये मेरा मजाज। अब आगे से मैं ये तवक्को करूँ कि मुफ्ती मुबश्शिर शाह का जो मजाज है वही शाहिद का भी हो, आमिर वान का भी वही हो, ये अरसलान गुज्जर का भी यही हो, ये मैं नहीं, कम से कम भाई मैं अपने मजाज में आज़ाद हूँ। मैं किसी पर क्यों पाबंदियां लगाऊं? भाई तुम भी ऐसे ही करो जैसे मेरा मजाज है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, हाथ जोड़ के माजरत के साथ। अच्छा अगली बात ये है कि ये अलैहिस्सलाम के ऊपर भी चलो थोड़ी सी गुफ्तगू हो गई है। साहिब और साहब, मिर्जा गुलाम कादियानी खुद कहता है अपने आप को साहब, रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफ़ा 80 के ऊपर कहता है वाह इन्नमा नरुद्दु सब्बा साबीन अला वजूहिहिम जज़ाअन लिल मुफ्तारियात। वो कहता है कि मैं गालियां इस वजह से देता हूं कि क्योंकि ये लोग मुझे गालियां देते हैं। तो साब, सीन के साथ साब का मतलब होता है गाली देने वाला। तो मिर्ज़ा कादियानी ने अपने आप को खुद साब कहा है, सीन के साथ साब खुद कहा है, मिर्जा साहब। हम जो कहते हैं ना मिर्जा साहब, उससे मुराद होता है गाली देने वाला मिर्जा, क्योंकि मिर्जे ने खुद कहा है। एक बात समझ। अब साहिब, स्वाद के साथ साहिब, वो हम नहीं कहते। हमारे जितने भी मुजाहिदीन खत्म नबूवत हैं, वो जब मिर्जे को मिर्जा साहब कहते हैं, उससे मुराद ये सीन वाला साहब होता है और उसका हवाला मैंने दे दिया है, यानी गाली गलोच करने वाला मिर्जा, ये मुराद होती है। ठीक है। अब सवाल यहां पर यह है कि साहिब मिर्जे को कहना ये भी सही है कि नहीं? साहिब, तो साहिब जो है उसका हवाला जो है वो हमारे जितने भी मुजाहिदीन खत्म नबूवत हैं, उलमाए कराम की बात कर, अवाम की नहीं, उलमा की। बड़ी किताबों के अंदर आपको मिल जाएगा कि उन्होंने मिर्जा साहिब, स्वाद वाला साहिब लिखा है। उठा के देख लें, ये मेरे पास ऊपर रखी हुई है एहतसाबे कादियानियत की 60 जिल्दें रखी, 60 जिल्दें। कोई जिल्द आपको ऐसी नहीं मिलेगी, उसके अंदर उन्होंने तकरीबन कोई
1000 उलमा कराम के रसाइल, जराइद और उनकी तहरीरें और इकट्ठी की हैं। तो अक्सर ने मिर्जा कादियानी के साथ स्वाहिब लिखा है। इस तरीके से शिया मकतबे फ़िक्र के उलमा कराम, देवबंद मकतबे फ़िक्र के उलमा कराम, वहाबी मकतबे फ़िक्र के उलमा कराम और बरेलवी मकतबे फ़िक्र के उलमा कराम, उन्होंने जब ये तहरीरें लिखी हैं तो स्वाहिब ही लिखा है। ये लिखी बड़ी बात है, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों के लिए हो सकता है ये कोई नई बात हो, ये नई कोई बात नहीं है। अच्छा, सवाल यहां पर यह स्वाहिब का अपना मतलब क्या है? स्वाद वाला स्वाहिब, ये दो तरह इस्तेमाल होता है। एक होता है स्वाहिब इज्जत के लिए, ये हर इलाके का एक उर्फ होता है, तो उस उर्फ को देखा जाता है यहां का उर्फ क्या है। तो हमारे इलाके का जो स्पीकिंग के अंदर जो उर्फ है ना, वो स्वाहिब जो होता है वो इज्जत के लिए बोला जाता है, इज्जत और एहतराम के लिए बोला जाता है किसी के लिए। और एक तहरीर का उर्फ है, तहरीर का अपना उर्फ है, स्पीकिंग यानी गुफ्तगू का अपना एक उर्फ है। दो उर्फ अलग अलग है। तो उर्फ तहरीर के अंदर स्वाहिब तकरीबन हर एक के लिए बोला जाता है, वो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। ये तहरीर का उर्फ बता रहे हैं, वो हर एक के लिए बोला जाता है और हमारे उलमा इकराम इस्तेमाल करते आए हैं। अब मिसाल है, फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला अथम की बात करेंगे तो वो लिखेंगे अब्दुल्ला अथम साहिब है। किसी हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी फलां की बात करेंगे तहरीर के अंदर तो वो साहिब लिखेंगे, तो वो तहरीर के उर्फ के अंदर जायज है। तो ये लफ्ज़ स्वाहिब की बात की जा रही है। तो अगर साहब की बात की जाए तो वो तो हमने हवाला दे दिया आपको। तो ये मैंने इल्मी तौर पे इस चीज को समझाने की कोशिश की है। अगर ये बातें नहीं किसी को समझ आती तो आजाद है, हर एक आजाद है, ठीक है। इसके अंदर कोई नहीं कि भाई आप मेरी बात मानने, इल्मी बात को मानने ही तो मानना ही मानना है, किसी पर कोई पाबंदी है ही नहीं, बिल्कुल आजाद, हर बंदा आजाद है। आगे बात करते हैं, ये कुतुब टट्टे शाह तो खोते शाह घोड़े शाह हैं। पहली बात यह है कि वो वहाबी मकतबे फिक्र के वो इन औलिया अल्लाह को, गौस कुतुब अब्दाल को नहीं मानते, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ये मुझे भी इसके ऊपर बड़ा सख्त इख्तलाफ, और उसका फिर आके ये कुतुब शाह टट्टे शाह ये वो, इसका जवाब फिर मैं अभी दे देता हूं, क्योंकि मैं तो उस बराड़ में मौजूद नहीं था, और अगर होता तो मैं फिर अपनी राय दे देता। मेरी तो आदत है ना, मैं बोल पड़ता हूं, चुप तो नहीं मैं रह सकता। देखिए ये लफ्ज जो है ये औलिया अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहे, गौस कुतुब अब्दाल, तो इनकी जब तौहीन की जाएगी वो उलमाए बरेलविया या उलमाए अहले सुन्नत जो हैं इसके ऊपर फिर सख्ती करती हैं। ये कायल को सख्त जाहिल गुमराह का फतवा देंगे कि बंदा ये जो है ना बड़ा जाहिल गुस्ताख है, बेअदब है। और रही बात ये कि काफिर नहीं होगा, कुफर के दलाइल अलग है। हाँ, गुमराही का फतवा दे सकते हैं, गुस्ताखी का फतवा दे सकते हैं, बेअदबी का फतवा दे सकते हैं, कुफर का फतवा तो नहीं आएगा। कुफर के लिए वो है कि ज़रूरियात दीनिया का मुनकिर हो। तो अब गौस कुतुब अब्दाल कोई ज़रूरियत दीन तो नहीं है कि इनके बगैर दीन मुकम्मल ही नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। इल्मी तौर पे ये मैं इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ, और अगर जो इल्मी लोग हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, और जिनको इन इल्मी बातों का नहीं पता तो वो यकीनी सी बात है इख्तलाफ कर रहे होंगे नीचे बैठ के मेरी बातों से। तो बहरहाल
ये लफ्ज हम भी कभी कभी बोलते हैं कि जब झूठे जैली डब्बा पीर और झूठे लोगों का रद्द कर रहे होते हैं तो हम कह देते हैं कभी कभी कि यार कोई वो बना हुआ है घोड़े शाह, कोई लूले शाह, कोई लंगड़े शाह, तो फलां शाह। तो वो बात का रबत देखा जाता है कि बात किस रबत में हो रही है, जिसको इंग्लिश में वो एक कॉन्टेक्स्ट पता नहीं कहते हैं, इंग्लिश तो नहीं मुझे आती, कॉन्टेक्स्ट वो यही है ना, कोई बता दे यार, कॉन्टेक्स्ट ही होता है लफ्ज, रबत के अंदर जो बात चल रही होती है। अरसलान गुजर इंग्लिश ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ नहीं आती। नहीं शाह जी साडी मुक गई आज। अच्छा ठीक। तो बहरहाल वो कॉन्टेक्स्ट भी देखा जाता है, वो रबत देखा जाता है, गुफ्तगू का रबत क्या था। ये तो नहीं कि दरमियान के अंदर से कोई जुमला काट के या कोई वीडियो काट के लेकर आकर कोई हमें बात करेगा तो उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं, किसी किस्म का कोई हुक्म नहीं। शुरू से फिर बात कहाँ से शुरू हुई थी आखिर तक सुनी जाएगी। अगर एक बराड़ फर्ज कर लेते हैं 10 घंटे की बराड़ हुई है, फिर वो 10 घंटे क्यों ही सुननी पड़ेगी। ये नहीं है उस 10 घंटे के अंदर से 2 मिनट का एक क्लिप ला के ये लो जी इसका हुक्म बताओ, ऐसे नहीं, ये इंसाफ नहीं है। इल्मी दुनिया के अंदर इसको इंसाफ नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा कि भाई ये लड़ाई झगड़ा ही है, तो भाई लड़ाई झगड़ा तो होते ही रहती है ना। वो तो किसी को भी किसी का भी जुमला काट के कोई एक नोट करके उसके ऊपर कोई भी, तो इल्मी दुनिया के अंदर ऐसे नहीं होता। हत्ता कि दारुल इफ्ता जो होता है हमारा, हम मुफ्ती लोग हैं, तो उसका भी ये उसूल नहीं है, बात को पूरा लिया जाएगा, ऐसे फतवा दिए ही नहीं जाता, समझ आई कि नहीं। तो मेरे बड़े बड़े क्लिप काट काट के मुख्तलिफ दारुल इफ्ता से, देवबंद, वहाबिया, बरेलविया के बड़े बड़े उलमा से वो क्लिप मेरे दिखाए गए उनको और फतवे लिए गए। तो वो आलिम थे, वो मुफ्ती थे, उन्होंने बाद में मुझसे भी रब्ता किया मुफ्ती साहब ने कि शाह जी आज आपका ये क्लिप आया है, फतवा तलब किया जा रहा था। तो हमने उनको कहा है कि ये पूरी वीडियो लेके आओ, हम पूरी वीडियो सुनना चाहते हैं। तो बात ये इल्मी तौर पे तरीका ही ये है भाई फतवे का, ऐसे फतवे तो नहीं दिए जाते, बात पूरी ली जाएगी, कहाँ से बात चली थी, किस रबत में ये बात हुई है, वो ले करके वो फतवा फिर दिया जाएगा। ये इल्मी तरीकाकार है। तो बहरहाल ये गोश्त कुतुब अब्दाल टट्टे शाह ये अगर तो कायल ने तौहीन की नीयत से, औलिया अल्लाह की तौहीन की नीयत से ये बात की है, पूछा जाएगा उससे कि भाई ये तूने झूठों की बात की है या सच्चों की बात की है। तो अगर तो वो कह रहा है कि सच्चे जो गोश्त कुतुब अब्दाल है मैंने उनके लिए ये बात की है, तो ये गुस्ताही पर ये जुमला महमूल है और गुस्ताही का हुक्म लगाया जाएगा, इसने गुस्ताही की है, ये औलिया अल्लाह का गुस्ताख। अगर कायल ये कहे कि नहीं मैं जो झूठे थे उनके लिए ये लफ्ज़ बोला है, तो कोई हुक्म नहीं। मैंने अपनी बात कंप्लीट कर ली है, तो तकरीबन सारे ही जो नुकात थे यहाँ पे अर्ज कर दिए। अब आप हजरात बोल। अच्छा अब कोई बंदा म्यूट ना करे। गुजर रुक जाओ। शायद साहब ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 007 ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਣ ਲਓ ਗੁਜਰ ਭਾਈ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੀਜ਼। मुफ्ती साहब इजाजत होवे ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, गुजर बोल नहीं यार, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। बोल मैं ठीक मुफ्ती साहब मैं सिर्फ थोड़ी ਜਿਹੀ ना वजाहत ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਤਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਫਸੀलन थोड़ा जिहा ਸਾਨੂੰ आगाह कर दो। जज़ाकमुल्लाह खैर। यार बात ये है कि देखें अरसलान भाई के यार इसका कोई हल नहीं है, जितनी बराडें करनी है कर लो, जाओ कर लो। या मैं कहता हूँ ये पीछे 1 मिनट अरसलान आप सुने भी तो सही, सुने भी तो सही। 1 हफ्ता हो गया तकरीबन ये बराडें हो ही रही हैं ना, पूरी पूरी रात होती हैं कि नहीं, आपके सामने ही ये शाहिद लगा के बैठे रहते हैं। इसका कोई हल अभी तक निकला कुछ नहीं होना इसका। मैं आपको मेरी आज की बात नोट कर ले, आप पूरा साल बराडे करते हो नहीं कुछ नहीं। बात समझने की कोशिश करें कि भाई मजाज का फर्क है। हम लोगों से मुफ्ती मुबशर से बर्दाश्त नहीं होता,
तो दूसरी तरफ वो बर्दाश्त कर लेती हैं, बस ठीक है, बस इसका हल कोई नहीं है, क्या हल करेंगे? ठीक हो गया जी अगर गल फिनिश होगी तो मैं गल करा शायद भाई चुप कर या ते मनु बोलन दियो या फिर तुसी बोल लो यार। मैं शायद भाई मैं तेन थले ला देना 1 सेकंड मैं सिर्फ एक पॉइंट इत्थे लिखना चाहना वा। मुफ्ती साहब ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵੋ। ਨਜਫ ਅਬਾਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਆਇਆ ਸੀ, 4 ਦਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਟਲੇ ਸੀਗੇ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣੋ ਅਗੇਂਸਟ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਛਣਕਣਾ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮਾਈ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸਲਾਨ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂਤਰ ਲਹੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ। ਐ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਹਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, 4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਲਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਬਸ ਜਜ਼ਾਕੁਮੁल्लाह खैर। मैं नहीं कहांगे शायद भाई अच्छा बात है वे अरसलान के देखो माशाल्लाह शाहिद दा वर्क बहुत कमाल है। देखो अल्लाह पाक ने किसी ने एक चीज़ दी है, उसकी तारीफ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। गल है वे कि शाहिद नूं कौम पसंद करती है, वो भावें जिंदा भी होन, भावें गालां कढ़दा है, जो भी करदा है, कौम पसंद करती है, तो कोई गल नहीं। तो बात है वे कि अगर कादियानी भी शाहिद नूं गाल दिंदा है सिर्फ इस वजह तो कि मिर्जे कादियानी की ठुकाई करदा है, और इन्हां दी पूरी टीम माशाल्लाह बैठ के मिर्जे की ठुकाई करदे ने। बस दुश्मन दी दुम दे उत्ते पैर आना चाहिए ते सब नूं सल्यूट, बस दुश्मन दी दुम ते रखो पैर, बस ओनूं तड़फना चाहिए, इंज करके तड़फे, ओदी तड़फन जिहड़ी है ना पता चले कि भाई वाकई तड़फदा है पिया। ते हुण इह वेखना कि किहदे नाम तो तड़फदा है पिया, बस मैं ते इन्ना मेरा इश्क प्यार मुहब्बत जिहड़ा हजूर नाल वालेहाना प्यार है, वो कहंदा है कि किहदे नाम तो कादियानी सड़दे ने, किहदे नाम तो कादियानी जिहड़े ने गालां दिंदे ने, बस इन्नी को गल सानू समझ आई जी। ऐसे ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਵੇ ਨਾ, I want to mention that ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਲ ਦੁਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਸਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਮਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਮਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, मैं वो आज जाहिर कर। एक मिनट छोटी सी गुजारिश है, मैं बात करने के लिए आपकी तरफ से यार एक मिनट मुझे टाइम दे दे, भाई मैनू सिर्फ एक मिनट अल्लाह का वास्ता है। ओ बात तू कर लिया जे यार, की हो गया इन्ने तुसी तत्ते तवे ते खड़े हो गए हो, गल कर लैंदे, गल टुरी होई है पहले, तुसी हुण अजे हुण आए हो ते ओ दूजे सारे बैठ के सुनदे ने, पे तुसी आके कमाल करदे हो यार, कुछ बंदा सुन ते लैंदा है। अजय हूं तुसी काल ते आयो, मेरी सुनो, हद हो गई यार। अच्छा बात यह है कि देखें, अगर ये शाहिद की टीम या शाहिद के साथ जो लोग बैठते हैं, ये अगर गमो गुस्सा का किसी चीज़ के ऊपर इजहार कर रहे हैं, तो यार ये इसके पीछे भी वो इश्क रसूल ही है, हजूर की मोहब्बत है, दीन के साथ लगाव है, ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। ये फिर अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं गाली के जरिए, जो इनसे हो सकता है ये करते हैं, ये भी प्यार की एक अलामत है। अगरचे ये तरीका गलत है, मैं गाली का कायल नहीं हूं, मैं नहीं हूं कायल, लेकिन उसके मोहब्बत और प्यार का एक तरीकाकार है कि नहीं, ये उसके नजदीक मिसाल अरसलान गुज्जर के नजदीक एक काम गलत हो रहा है, हजूर की तौहीन हो रही है और ये अल्लाह की तौहीन हो रही है, तो वो उस यानी अपने नजरिए के अंदर उसका वो प्यार है, मोहब्बत है, उसका वो इजहार करता है। तो बहरहाल थोड़ी सी एक समझने समझाने के अंदर इफ़हाम तफ़हीम में थोड़ी सी गलती है, तो बहरहाल कोई नहीं है, अल्लाह को पता है ना कौन सही है कौन सच्चा है झूठा है। तो बहरहाल तो जी शाहिद भैया आप बात कर लें। मुफ्ती साहब
यार ये कोई तरीका नहीं है। पहले जो बैठे हुए हैं असल काम उनका है, असल वो बोलेंगे पहले, जो बाद में है वो बाद में बोलेंगे। आर्गुमेंट नहीं कर रहा मैं, एक साथ बात करके फिर मेरी इजाजत है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो बात है, जो कर रहा है, आप आ गए हैं, वो कारी साहब आए हैं, वो भी एक मैं तो बैठा हूँ, नहीं आप नहीं बोलेंगे, शायद आप मैनेज करो ना यार, जो पहले बैठे उनको टाइम पहले दें। साहब ये शुरू से बैठे हुए मुफ्ती साहब मैंने इसीलिए बोला है कि ये सारे बोल लें, फिर मैं कह रहा हूँ कि आमिर नज़ीर जो कर रहा है वो मर्जिया नवाजी नहीं है, तो वो क्या है? मैं आपकी नजर में वो मर्जिया नवाजी नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? बस ये मेरा सवाल है। मेरे नजदीक तो नहीं है, आपके नजदीक है तो ठीक है, आपके नजदीक है, मेरे नजदीक नहीं है। मुफ्ती साहब मेरा भी एक सवाल है, ज़ाहिर है कि बातों पे लग रहा है। एक मिनट आमिर भाई, एक मिनट मुझे दे देना सिर्फ, मैं फिर बात मुकम्मल। मुफ्ती साहब उस दिन आमिर नज़ीर से मेरी बात हो रही थी ईसा इब्ने मरियम के ऊपर, दोबारा आना है तो मैं कह रहा था कि उम्मती होंगे, वो कह रहा था इसमें कोई नहीं है, वो नबूवत ले लेंगे। कादियानियों को जो रास्ता देता है, बताएं मुफ्ती साहब, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ भी किया है, किरात भी की है, सर्फ नाब भी पढ़ी है, आमा खासा भी किया है, दर्स निज़ामी भी की है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे नहीं है। लेकिन मकसद ये, जो बंदा रास्ता देगा दीन का रास्ता, कादियानियों की सपोर्ट कर रहा है सीधी सीधी, जो कहेगा कि ईसा इब्ने मरियम आएंगे वो नबी ही होंगे, उस तो ये कादियानी यही सवाल जब कहते हैं कि दोबारा नहीं आ सकता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसके बाद नबूवत नहीं आ सकती, वो भी मिसाल ईसा इब्ने मरियम की देते हैं, जो इस वक्त आमिर नज़ीर साहब दे रहे हैं। हमारी ये मुकालमा हो रहा था, आपने अचानक बात सुनी, मुफ्ती साहब एक मिनट, आपने बात सुनी, आपने कहा आप तो कादियानी की तरफ आ रहे हैं, उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया। मिलावट, उस वक्त मुझे ये लगा कि ये मिलावट कर रहे हैं, मुफ्ती साहब भी शामिल है। मुझे इतना अफसोस दुख लगा यार, हमारा जब एक बात हमारे बरेलवी मसलक में या अहले हदीस देवबंदी मसलक में वो चीज़ नहीं है, तो उसको जोरे विच मिलावट करना, जवाब मुझसे नहीं, इतनी लंबी चौड़ी कहानी का जवाब मेरे पास नहीं होना, मैं उसूली आदमी हूँ, एक पॉइंट के ऊपर बात करने वाला। ऐसे नहीं है इतनी चीजों का ये जो बैठा है ना शायद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हक की बात करता है, कसम खुदा की हम इसके फैन हो गए, इसके पास नहीं है जो इल्म नहीं है, जो कुछ है इसके फैन, ये बंदा हक है, हक की बात करता है, मिलावट नहीं करता, कहता उठ जाओ मेरी बरोड के ऊपर, ये तुम गलत बात कह रहे हो। मुफ्ती साहब जो बंदा रास्ता देगा कादियानियों को, बैठ के बातें करेगा, जब हमारा वहाँ पे मुसलमान उसको कहते जा, कभी ये डंडा दिखा रहे हैं, कभी उधर से रास्ता दे रहे हैं, मैं जो भी हदीस पेश करता हूँ ये सही महसूस हो रही है, कौन सी सही है यार? जो रास्ता मुफ्ती साहब बिल्कुल गलत इंसान है, बस बात खत्म। इस वक्त बरोड में अगर शहद भाई जो बरोड चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भाई, अल्लाह इसको कामयाबी दे, है ना, ये अपना सबूत दे रहा, इसका अजर मैं नहीं मेरा रब देगा इंशाल्लाह। मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, आ रही है मुफ्ती साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मुफ्ती साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। आ रही है। कारी साहब अब जरा मुझे बात करने दें प्लीज। यार एक मिनट पहले कारी साहब की, ओ भाई कारी साहब की बात का जवाब तो दे लूं मैं। दो चीज है मुफ्ती साहब, बता देना। इतनी चीजों की लंबी चौड़ी लिस्ट जब आप दे देंगे ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। एक एक चीज पर बात करते, मैंने आपको रोका था जी, रुक जाएं, मैंने एक चीज पर बात करनी थी आपसे। नहीं, आप कह रहे हैं कि आमिर नज़ीर साहब ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी बन के आएंगे, तो इस वजह से आप आमिर नज़ीर साहब के मुखालिफ हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी बन के आएंगे? कारी साहब, महाराज जब वो दोबारा नबी, अभी नबी तो है, जब वो उम्मत में आएंगे तो फिर वो आगे से ये जो बहस है ला नबी आबादी, जितनी भी हदीसें सरकार की आती हैं, जितनी भी हदीसें आप उठा लें, तो हम जब ये करेंगे फिर तो वो कादियानी कहेंगे रास्ता हमें दे रहे हैं, फिर तो जहरी बात है नबी की हदीस का इनकार करना है सीधा सीधा। मुफ्ती साहब जो बात गलत है, मिलावट करने वाला हमसे नहीं है, मुझे बिल्कुल मुफ्ती साहब नहीं, मुझे बात कर, माइक म्यूट करें, गलत बात।
ये अकीदा नहीं है जी, हमारा ये अकीदा नहीं है, मुसलमानों का तो ये अकीदा है ही नहीं। अब देखे कारी साहब, आप कह रहे हैं जी मैं सरफो ना पढ़ी, आमा किया, खासा किया, आलिया किया, आलमिया किया, दोरादिस किया, ये किया वो किया, लोगों को क्या दर्स दे रहे हैं। और इतनी समझ लें कि जहालत में मबनी बात आप ये कर रहे हैं, ये मतलब ये इल्मी बंदा तो नहीं ये कोई कर सकता, ये अकीदा है ही नहीं, ये अहले सुन्नत का तो ये अकीदा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ ना ये अहले सुन्नत का है, ना ही वहाबिया का है, ना देवबंदियों का है, ना शियों का, ये किसी का अकीदा है ही नहीं। नबी की नबूवत नहीं छीनती, जो इस चीज का कायल हो कि नबी की नबूवत छीन जाती है वो काफिर है, ये कुफरिया अकीदा है, ये अकीदा ही कुफरिया है, ये हमारी अकायद की किताबों में लिखा हुआ है। अगर तो आप वाकई आप कह रहे हैं अम्मा खासा ये वालिया आलमिया पढ़ा हुआ है आपने, तो अकायद नस्फिया पढ़ी है कि नहीं आपने, उसके उस वक्त भी नबी होंगे, नबी की नबूवत छिनती नहीं है, ये तो अकीदा ही नहीं है कोई जो आप कह रहे हैं कि वो उम्मती होंगे तो ये होंगे। इसकी दलाइल क्या है आपके पास, मुझे दें, वो कौन सी हदीस है या कुरान की आयत है जहां से ये आपने अकीदा बनाया है, ये अकीदा ही गलत है, ये तो अकीदा है ही नहीं किसी का, या किसी आलम दीन ने कहा हो, कोई फतवा दिखा दें, तो ऐसी खोखली बातें तो नहीं होनी चाहिए ना। अब आपकी बातों के ऊपर यकीन एक जाहिल करेगा कि आपने जब कह दिया मैंने आलिया किया, आलमिया किया, ये किया वो किया, तो एक जाहिल बंदा सुन के बड़ा मुतासर हो जाएगा, वो कहेगा बल्ले बल्ले इसने तो बड़ा कुछ किया हुआ है, लिहाजा ये जो बात कर रहे ठीक कह रहे। इल्मी दुनिया के अंदर किसी आलम दीन के सामने जब ये बात करेंगे आप, वो पकड़ लेगा कि यार ये बात गलत है, ये कीता ही नहीं है हमारा। मियाँ आप कारी साहब कि आप या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आप को पता ही नहीं है इस अकीदे के बारे में, आपने कोई अकायद की किताब पढ़ी कोई नहीं है, ये अकीदा नहीं है। हाँ, मुफ्ती साहब अकीदा ये बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, मेरी बात मुकम्मल करें, जवाब देंगे इंशाल्लाह, टेंशन न लें जी। उतनी देर आप दलाइल इकट्ठे कर ले, मैंने अभी आपसे वो दलाइल लेने हैं। आप, मैं जितनी देर गुफ्तगू कर रहा हूँ आप दलाइल इकट्ठे कर लें जाके, ताकि बर वक्त आपको दलील देने में और दलील के साथ बात करने में आसानी रहे, क्योंकि दलील जो होती है वो मुद्दई के ऊपर होती है, दावा आपने की है तो आपने दलील देनी है, आपके ऊपर लाजिम है कि नहीं वो नबी नहीं होंगे जब तशरीफ लाएंगे, आपने इनकार किया नबी की नबूवत का। अच्छा, तो बात ये है कि सुने मुफ्ती